RVA اردو نیوز سروس میں خوش آمدید. میں ہوں ثنا جارج. سب سے پہلے ہیڈ لائنز. عزت مآب کارڈینل جوزف کوٹس نے ڈاکٹر روتھ فاؤٹ کی ڈیتھ اینیورسری کے موقع پر ان کی خدمات کو یاد کیا اور خراج تحسین پیش کیا. سرگودا اور ملتان میں CSS اکیڈمیز کا افتتاح کر دیا گیا. 6 اگست 2020 کو تقدس مآب بشپ سیمسن شکردین نے اپنے دستے مبارک سے ریورنڈ پرکو OFM اور ریورنڈ سنیل اشرف کو کاہنانہ خدمت کے لیے مخصوص کر دیا. عید الاضحیٰ کے موقع پر بین المذاہب مکالمہ اور بین الکلیسیائی اتحاد کے ممبران نے آرچ بشپ سیباسٹین فرانسس شاہ کے ساتھ مل کر وطن عزیز کی سلامتی کے لیے دعا کی. تقدس مآب بشپ اندریاس رحمت نے استحکام کے ساکرامنٹ کے موقع پر بشپ چیلیو کالونی فیصل آباد میں مقدسہ مریم کی پہاڑی کو مخصوص کر دیا. کاریتاس پاکستان کراچی نے کووڈ-19 سے نپٹنے کے لیے کچن گارڈننگ کٹس خواتین میں بانٹ دیں. کاریتاس پاکستان کراچی کا سیلاب اور کرونا وائرس کے متاثرین کے ساتھ اظہار یکجہتی. تقدس مآب بشپ بینی ٹراوس بشپ آف ملتان ڈائسس نے اپنے دستے مبارک سے ریورنڈ ڈیکن سجاد یوسف کو کاہنانہ خدمت کے لیے مخصوص کر دیا. 8 اگست 2020 کو ابن مریم وائس پروونس پاکستان کے زیر اہتمام مقدس ڈومنک کی عید منائی گئی. فیصل آباد ڈائسس میں خادمین التار کے لیے تربیتی ورکشاپس کا انعقاد. تقدس مآب بشپ سیمسن شکردین نے کہا کہ نوجوانوں کے روشن مستقبل کے لیے محنت کی ضرورت ہے. پوپ فرانسس نے ساری دنیا کو دعوت دی کہ ایٹمی ہتھیاروں کو دنیا سے پاک کریں. یہ تھی آج کی نیوز ہیڈ لائنز. ملتے ہیں بریک کے بعد. RVA اردو نیوز سروس، سچائی اور امن کی آواز. امن اور سچائی کی اس آواز کے ساتھ ہم آواز ہونے کے لیے اپنی ڈائسس، پیرش، تعلیمی اور فلاحی اداروں کی سرگرمیوں کی خبریں RVA کے اس ای میل اور واٹس ایپ نمبر پر بھیجیں. ای میل ہے rvaurdunews@gmail.com. واٹس ایپ نمبر ہے 009333459155. ویلکم بیک ناظرین. اب خبریں تفصیل کے ساتھ. ڈاکٹر روتھ فاؤٹ کا تعلق جرمنی سے تھا، لیکن انہوں نے پاکستان میں کووڈ کے مریضوں کی خدمت کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کر دی. 10 اگست 2020 کو ڈاکٹر روتھ فاؤٹ کی تیسری ڈیتھ اینیورسری کے موقع پر سینٹ پیٹرک کیتھیڈرل کراچی میں خصوصی پاک ماس کا انعقاد کیا گیا، جس کی قیادت عزت مآب کارڈینل جوزف کوٹس نے فرمائی. ریورنڈ فادر جیمز اور ریورنڈ فادر جونی نے یوخرستی عبادت میں معاونت فرمائی. عزت مآب کارڈینل جوزف کوٹس، کاہنوں، سسٹر صاحبات اور مومنین نے ان کی خدمت کے اعتراف میں انہیں خراج تحسین پیش کیا. یاد رہے ڈاکٹر روتھ فاؤٹ کو پہلی پاکستانی خاتون ہونے کا اعزاز حاصل ہے جن کو حکومت نے اسٹیٹ فیونرل سے نوازا. عزت مآب کارڈینل جوزف کوٹس نے کہا کہ ہم ڈاکٹر روتھ فاؤٹ کے نقش قدم پر چلیں گے. ریورنڈ فادر صابر لیاقت کی قیادت میں CSS کلاسز کا افتتاح کر دیا گیا. ریورنڈ فادر صابر لیاقت سینٹ فرانسس زیویئر کیتھولک چرچ سرگودا میں یوتھ کے انچارج ہیں. تعلیم و تربیت کے اس پروگرام کا مقصد نوجوانوں کی تعمیر و ترقی ہے. فضیلت مآب بشپ ڈاکٹر جوزف ارشد کی قیادت میں 2 سال پہلے سینٹ میریز CSS اکیڈمی کا افتتاح کیا گیا تھا، جس کا مقصد نوجوانوں کو حکومتی سطح پر اعلیٰ عہدوں کے لیے تیار کرنا ہے. تقدس مآب بشپ بینی ٹراوس نے سینٹ پیٹر CSS اکیڈمی کا افتتاح کر دیا. اس اکیڈمی میں ملتان، خانیوال، بہاولپور، رحیم یار خان اور فیصل آباد سے 75 نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں نے داخلہ لیا ہے، جو دسمبر 2020 میں ہونے والے اسپیشل CSS امتحان کی تیاری کریں گے. ریورنڈ فادر یوسف سوہن نے نوجوانوں کو بولینڈ ہال میں خوش آمدید کہا. کاریتاس پاکستان ملتان کے ایگزیکٹو سیکرٹری سیمول کلائمٹ نے اس تاریخی اقدام کو سراہا. 6 اگست کا دن حیدرآباد ڈائسس کے لیے بابرکت دن تھا. اس دن خدا نے اس ڈائسس کو 2 نئے کاہنوں سے نوازا. تقدس مآب بشپ سیمسن شکردین نے اپنے دستے مبارک سے ریورنڈ پرکو OFM اور ریورنڈ سنیل اشرف کو کاہنانہ خدمت کے لیے مخصوص کر دیا. بشپ سیمسن شکردین نے ویکر جنرل فادر صابر صادق، فرانسسکن برادری کے کسٹس فادر مغل پیٹر OFM، کیتھیڈرل کے ریکٹر فادر جیمز کے ہمراہ پاکماس کی قیادت کی. بشپ سیمسن شکردین نے واز کرتے ہوئے کہا، مجھے خوشی ہے کہ حیدرآباد ڈائسس میں کاہنوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اور ڈائسس مستحکم ہو رہی ہے. بشپ صاحب نے کہانت کے دونوں امیدواروں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کی کہانت میں شامل ہوتے ہوئے خدمتگار کاہن بننا ہے اور ہر وقت کلیسیا کی خدمت کرنے کے لیے تیار رہنا ہے. مشنری جذبہ سے سرشار رہتے ہوئے کوشش کرنی ہے اور پیرش میں ہر خاندان تک پہنچا جائے
ताकि इनके ईमानी सफ़र में इनकी मदद और रहनुमाई की जाए। हमारी डायसिस मिशनरी डायसिस है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी मौजूदगी डायसिस की मिशनरी सरगर्मियों में बेहतरी लाएगी। 9 अगस्त 2020 को फजीलत मॉब आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ की क़यादत में बैनुल मज़ाहब मुकालमा और बैनुल कलीसियाई इत्तेहाद के मेंबरान ने ईद उल अज़हा के मौके पर मुस्लिम बरादरी को मुबारकबाद पेश की और वतन की सलामती के लिए मिलकर दुआ की। इस मौका पर तमाम मेंबरान ने रेवरेंड फादर फ्रांसिस नदीम की याद में अमन का पौधा लगाया और अमन के इस पौधे को उनके नाम से मंसूब कर दिया। बैनुल मज़ाहब मुकालमा के मेंबरान के साथ आर्च बिशप सेबेस्टियन फ्रांसिस शॉ, रेक्टर कैथीड्रल रेवरेंड फादर मुश्ताक प्यारा, रेक्टर कैप्टन हाउस रेवरेंड फादर इशफाक एंथनी और ब्रदर रिजवान ने मिलकर तमाम मुस्लिम उलमा और दीगर मुअज़्ज़ज़ीन के साथ ईद का केक काटा। 9 अगस्त 2020 बरोज़ इतवार फैसलाबाद डायसिस बिशप चेलियो कॉलोनी में बच्चों को इस्तेहकाम का साक्रामेंट दिया गया, जिसमें पाकमास की क़यादत इज़्ज़त माब बिशप इंद्रियास रहमत ने की, जबकि इनकी मावनत रेवरेंड फादर बोनी मेंडस और रेवरेंड फादर खालिद रशीद आसी ने की। तमाम बच्चों ने इज़्ज़त माब बिशप इंद्रियास रहमत के दस्ते मुबारक से इस्तेहकाम का साक्रामेंट हासिल किया। इसके अलावा मुक़द्दस मरियम की पहाड़ी को मखसूस किया गया। 3 अगस्त 2020 को कारितास पाकिस्तान ने सेंट माइकल पैरिश के मुख्तलिफ इलाकों में अपने कोविड-19 इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत 25 मुस्तहिक और कमज़ोर ख़वातीन में साइको सोशल किचन गार्डनिंग किट्स तकसीम की, ताकि गरीब और कमज़ोर ख़ानदान लॉकडाउन के दौरान कोविड-19 के खिलाफ मौसर तौर पर निपट सकें। किचन गार्डनिंग किट्स की तकसीम से कबल शुरा ने सेहत व सफाई से मुतल्लिक आगाही सेशन में हिस्सा लिया, जिसमें उन्हें सेहत व सफाई के असूलों के अलावा सही तरीके से हाथ धोना सिखाया गया। तकसीम करदा साइको सोशल किट्स में मौसम गर्मा के मुख्तलिफ बीज के अलावा नामियाती खाद और किचन गार्डनिंग से मुतल्लिक किताबचा शामिल था। कारितास के सोशल मोबिलाइजर मिस्टर जावेद इकबाल ने किचन गार्डनिंग के हवाले से तारीफी प्रेजेंटेशन देते हुए कहा कि ये किचन गार्डनिंग किट्स का मकसद कोरोना वायरस के दौरान होने वाले लॉकडाउन के खिलाफ खौफ और तनाव को दूर करना है। घरों में सब्जियां उगाने से लोगों को सब्जियां खरीदने के खर्चे से बचाया जा सकता है और ख़ास तौर पर उनके लिए फ़ायदेमंद होगा जो लॉकडाउन के बायस अपनी नौकरी खो चुके हैं। कारितास पाकिस्तान कराची के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी जनाब मंशा अनवर साहब ने नोट किया कि महीनों के लॉकडाउन के बायस पाकिस्तान में कम आमदनी वाले लोगों में सेहत की देखभाल और नफ्सियाती बहबूद की ज़रूरियात में इजाफा हुआ, जो कि बढ़ता जा रहा है। कारितास की काविश है कि किचन गार्डनिंग के जरिए ख़वातीन की नफ्सियाती तौर पर फलाह बहबूद में मदद मिले। नूर साहब ने इस बात पर भी जोर दिया कि अपने आप को, अपने ख़ानदानों को और अपनी बरादरी के लोगों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए समाजी फासला बरकरार रखें। मंशा नूर साहब की बात के बाद ख़वातीन में किचन गार्डनिंग सोशल किट्स तकसीम की गईं। शाजिया आसिफ ने लॉकडाउन के दौरान मौसम गर्मा की सब्जियां उगाने के लिए बीज की फ्राहमी पर कारितास पाकिस्तान कराची का शुक्रिया अदा किया। 8 अगस्त 2020 शुमाली बाईपास जिला मलीर कराची के निचले इलाकों होली मरियम गोट, यूनस गोट और नुसरत नगर में रहने वाले लोगों के लिए ये दिन एक अंधोनाक दिन था, जब मानसून बारिश की चौथी लहर शहरी सैलाब में बदल गई। सैलाब के नतीजे में मोहलिक हादसात, शहरी सैलाब, डूब जाने वाली सड़कें, बिजली के खराब होने और ट्रैफिक जैम की सूरत हाल पैदा हुई और यूं बज़ाहिर जोरदार मानसून की बारिशों के सबब ये शहर टूट फूट का शिकार रहा। कारितास पाकिस्तान कराची की हंगामी रिस्पांस टीम ने होली मरियम गोट की डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी से फौरी तौर पर राब्ता किया और शहरी सैलाब से मुतासरा कम्युनिटी को बचाने और उनकी मदद के लिए DMSC मेंबरान और रजाकारों को फाल किया। 9 अगस्त 2020 को कराची आर्चडायसिस के सेंट माइकल पैरिश के नुसरत नगर इलाकों में कारितास ने होली मरियम गोट के डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी की मदद से 150 सैलाब से मुतासरा खानदानों के दरवाजे पर बिरयानी और पीने का साफ पानी तकसीम किया। मिस्टर मंशा नूर ने अपनी तकरीर में कहा कि कारितास का मतलब है मोहब्बत और कारितास हमेशा वहां पहुंचता है जो कुदरती आफात से दो चार हैं और जहां कोई भी उनके साथ प्यार और यकजहती बांटने नहीं जाता। तकद्दस माब बिशप बेनी ट्रावल्स, बिशप ऑफ मुल्तान डायसिस ने अपने दस्ते मुबारक से रेवरेंड डीकन सजाद यूसुफ को कहनाना खिदमत के लिए मखसूस कर दिया। 7 अगस्त 2020 को मुल्तान में OMI जमात से ताल्लुक रखने वाले रेवरेंड डीकन सजाद यूसुफ को तकद्दस माब बेनी ट्रावल्स ने कहानत की खिदमत के साक्रामेंट से नवाज दिया। बिशप बेनी ट्रावल्स ने अपने वाज में खिदमत के साक्रामेंट पर जोर देते हुए कहा कि खुदा हमको हमारी सलाहियतों की वजह से नहीं बल्कि कमजोरियों की वजह से चुनता है और अपना फजल अता करता है कि हम उसके साथ वफादार रहें। OMI जमात के सरदार आला रेवरेंड फादर खान पॉलूस ने बिशप बेनी ट्रावल्स और तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया। 8 अगस्त 2020 को मुकद्दस डोमिनिक की ईद पीस हॉल पाक अरब लाहौर में मनाई गई। प्रोग्राम का आगाज यूखरिस्ती इबादत से हुआ, जिसकी क़यादत पाकिस्तान में कैप्चन बरादरी के निगरान कस्टस रेवरेंड फादर आबिद हबीब ने फरमाई। डोमिनिकन जमात के सरदार आला रेवरेंड फादर यूनुस शहजाद,
राब्ता मंजिल के डायरेक्टर रेवरेंड फादर कैसर फिरोज और रेवरेंड फादर जेम्स चन्नन ने मावनत फरमाई। रेवरेंड फादर कैसर फिरोज ने अपने वाज में मुकद्दस डोमिनिक की बुलाहट और खिदमत को वाज़ेह तौर पर बयान किया। उन्होंने मुकद्दस डोमिनिक की शख्सियत पर रोशनी डाली और कहा कि वो बहुत दिलेर और निडर मुकद्दस थे, जिन्होंने उस दौर की बिदअतों को शिकस्त दी और मोमिनीन को खुदावंद के करीब लाने का वसीला बने। मुकद्दस फ्रांसिस और मुकद्दस डोमिनिक की रोम में मुलाकात के बारे में बताते हुए कहा कि वो एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए और उन्होंने एक दूसरे के मिशन को सराहा। दोनों मुकद्दसीन ने एक ही दौर में मुख्तलिफ मकामात पर खुदावंद की अंजीली खुशखबरी का प्रचार किया। इबादत के बाद पाकिस्तान में कैप्चन बरादरी के नगरान कस्टस रेवरेंड फादर आबिद हबीब ने कहा कि मुकद्दस डोमिनिक हमें कलाम की गहराई तक ले जाते हैं। उन्होंने कहा मुकद्दस डोमिनिक एक माहिर इल्म इलाहियात हैं जो हमारी मदद करते हैं ताकि हम इल्म इलाहियात को गहरे तौर पर समझें। इसके बाद डोमिनिकन जमायत के सरदार आला रेवरेंड फादर यूनुस शहजाद ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि मुकद्दस डोमिनिक ने 3 ममालिक में खिदमत सरअंजाम दी, जिनमें स्पेन, इटली और फ्रांस काबिल जिक्र हैं। हम सब मुकद्दस डोमिनिक के मिशन को, जो कि सच का मिशन है, लेकर आगे बढ़ते रहेंगे। उन्होंने मजीद बताया कि मौजूदा हालात में हम किस तरह मुकद्दस डोमिनिक के नक्शे कदम पर चलते हुए खुदा की मर्जी को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद मुकद्दस डोमिनिक की ईद के मौका पर तैयार किया गया खसूसी केक रेवरेंड फादर यूनुस शहजाद और उनके हमरा काहिनों और सिस्टर सहबात ने मिलकर काटा। डोमिनिकन जमायत की सुपीरियर सिस्टर एंजेला ने कहा, गुड इवनिंग एवरीवन एंड हैप्पी फीस्ट ऑफ our Father Saint Dominic. It's really a joy to celebrate together. आज हम ये सेंट डोमिनिक की ईद मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं और सेंट डोमिनिक ने जैसे कहा कि we have to walk according to the need of the time. We have to see the signs of the time. So अब जबकि इस साल ये ईद जो है पेंडेमिक में आ गई है, तो हम जैसे पिछले सालों में मनाते रहे हैं ऐसे तो नहीं हो सका, लेकिन इस टाइम पे जबकि हम सारे लॉकडाउन की वजह से सारे अंदर ही रहे, कहीं बाहर नहीं मिले जुले नहीं, बहुत से प्रोग्राम भी कैंसिल हो गए या पोस्टपोन हो गए, लेकिन हमने बहुत कुछ सीखा भी है। बहुत से नए प्रोग्राम स्टार्ट किए गए और हमें मौका मिला कि हम जिनसे शायद कभी गुफ्तगू नहीं कर सकते थे, देख नहीं सकते थे, अभी मीडिया ने हमें सबको बहुत करीब भी कर दिया है। तो फादर जी इसके लिए बहुत शुक्रिया। ख़ासतौर पे ये जो आपने न्यूज़ रूम शुरू किया है ये भी बहुत अच्छा है। तो आज मेरा ख्याल है ये वाली न्यूज़ भी आएगी उस पर ना। तो आज की ईद के हवाले से मैं आप सबको बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद देती हूँ। डोमिनिकन फिलॉसफी हाउस के स्टूडेंट मास्टर रेवरेंड फादर पैट्रिक पीटर ने कहा, मेरी तरफ से और तमाम फ्रायर्स की तरफ से इब्ने मरियम हाउस ऑफ स्टडीज़ की जानब से आप सबों को मुकद्दस डोमिनिक की ईद मुबारक हो। मुकद्दस डोमिनिक ना सिर्फ एक अजीम मुबल्लिग था, बल्कि एक अजीम मुबशर और वक्त की नब्ज़ पर हाथ रख कर पहचानने वाला और इसी के मुताबिक अंजील को फैलाने वाला रसूल था, जिसने ना सिर्फ 12वीं और 13वीं सदी में बिदअतों के खिलाफ डटकर मुकाबला किया और कैथोलिक कलीसिया की सही और सच्ची तालीम से दुनिया को रोशनास किया, बल्कि इसके साथ साथ अंजील को फैलाया और सच्चाई का प्रचार किया। हम सब जो उनके पैरोकार हैं और उनके शागिर्द हैं, आज भी उसी अमल से दुनिया को मनव्वर करते हैं और अंजील का प्रचार करने के लिए जोश और जज्बे के साथ, पूरी लगन के साथ मैदान अमल में हैं। खुदावंद आज की दुनिया में तमाम उन बिदअतों को जो आज के ज़माने के मुताबिक हैं उन्हें ख़त्म करे और कि यस्सु मसीह का नाम पूरी दुनिया में जलाल पाए। खुदावंद आपको बरकत दे। आप सबको मुकद्दस डोमिनिक की ईद मुबारक हो। डीकन प्रकाश ने मुकद्दस डोमिनिक का पैरोकार होते हुए अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कुछ यूँ कहा, हेलो गुड इवनिंग। मैं डीकन प्रकाश इब्ने मरियम वाइस प्रोविंस की जानिब से और अपने इब्ने मरियम डोमिनिकन हाउस ऑफ स्टडीज़ की जानिब से तमाम सामईन को बहुत ज़्यादा मुकद्दस डोमिनिक की ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ।
और आज हम खुदा बाप का शुक्रिया अदा करते हैं उन तमाम मिशनियों के लिए जिन्होंने इस कुराए अर्ज़ में आके डोमिनिकन कैरिज्म के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारते हुए हमारे अंदर एक ऐसा जोश पैदा किया ताकि हम मुक़द्दस डोमिनिक के नक्शे कदम पर चलते हुए खुदावंद के कलाम का प्रचार कर सकें। आज मुझे बड़ी खुशी है कि हम सारे डोमिनिकन फैमिली एक जगह पर इकट्ठे होकर मुक़द्दस डोमिनिक के तमाम भाइयों के साथ बहनों के साथ मिलकर मुक़द्दस डोमिनिक की याद में उसकी खुशियों में शरीक होते हैं, जो उस सारे काम को याद करते हैं जो इसने इस कलीसिया में रहकर इस दुनिया में रहकर खुदावंद के पाकिस्तान में किए। और इसके साथ साथ आज हम रेडियो वेरिटास की सारी टीम के शुक्रगुजार हैं और सबसे बढ़कर हम रेवरेंड फादर कैसर फ्रॉस OFM कैप के लिए शुक्रगुजार हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम में आके हमारे इस प्रोग्राम की शान को चार चांद लगाए और अपने चैनल के ज़रिए हमें जो है कवरेज दी। Thank you Farji and for the whole team. We are very grateful to you. Thank you so much. 5 से 7 अगस्त 2020 कैथलिक बोर्ड ऑफ एजुकेशन फैसलाबाद डायसिस के ज़ेरे एहतमाम अरूज मरियम पास्टरल केयर सेंटर फैसलाबाद में पाक लतूरिया में खादमीन अल्तार का किरदार और उनकी अहमियत के मौजू पर सह रोज़ा तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। तरबियती वर्कशॉप के इनेकाद का मकसद फैसलाबाद डायसिस के तमाम पैरिशेस के खादमीन अल्तार की तरबियत करना था। तरबियती वर्कशॉप में फैसलाबाद डायसिस के 25 पैरिशेस से 25 अफराद ने शिरकत की, जिसमें मुनाद सहबान, असातिज़ा कराम और चर्च कमेटी के नुमाइंदगान ने शिरकत की। रेवरेंड फादर अलमास डैनियल, रेक्टर सेंट फ्रांसिस जेवियर सेमिनरी लाहौर ने बतौर सहूलतकार वर्कशॉप में शिरकत की, जबकि रेवरेंड फादर यूनुस इनायत, डायरेक्टर कैथलिक बोर्ड ऑफ एजुकेशन फैसलाबाद डायसिस और नाइम गिल, सेक्रेटरी कैथलिक बोर्ड ऑफ एजुकेशन फैसलाबाद डायसिस ने निज़ामत के फ़राइज़ सरअंजाम दिए। तक़द्दस मौब बिशप डॉक्टर इंद्रियास रहमत, बिशप ऑफ फैसलाबाद डायसिस ने दौरान वर्कशॉप कहा कि खादमीन अल्तार पाकमाज का लाजमी जुज़ होते हैं, जिसके बगैर यूखरस्ती इबादत नामुकम्मल है। इसलिए डायसिस में पहली दफ़ा खादमीन अल्तार की तरबियत का सिलसिला शुरू किया गया, जो 6 माह पर मुश्तमिल है और ये सरगर्मी इस तरबियती प्रोग्राम की पहली नशिस्त है, जिसमें डायसिस के तमाम पैरिशेस से 25 अफराद ने शिरकत की। इसके बाद यही 25 तरबियत याफ्ता अफराद अपने पैरिश में जाकर अपने काहिन और चर्च कमेटी के साथ मिलकर मज़ीद 25 नौजवान लड़के और लड़कियों को अल्तार की खिदमत के लिए तैयार करेंगे। नईम गिल, सेक्रेटरी कैथलिक बोर्ड ऑफ एजुकेशन फैसलाबाद डायसिस ने कहा कि उन्होंने तरबियतकारों की रहनुमाई के लिए एक किताबचा भी तैयार किया है, जिसके ज़रिए तरबियतकार अपने पैरिशेस में जाकर मुस्तकबिल के खादमीन अल्तार को तरबियत देंगे। मज़ीद उन्होंने तरबियतकारों को रिपोर्टिंग और क्लास के औकात कार से आगाह किया। कैथलिक डायसिस ऑफ हैदराबाद में इज़्ज़त मौब बिशप सैमसन शुक्रदीन के साथ यूथ डायरेक्टर मास्टर शौकत, जीसस यूथ हैदराबाद के चैपलन रेवरेंड फादर तारिक, जीसस यूथ पाकिस्तान के कोऑर्डिनेटर मिस्टर इयाज गुलजार और यूथ मेंबरान ने मीटिंग की, जिसमें पिछले प्रोग्रामों का एक जायजा लिया गया। कामयाब प्रोग्रामों के लिए हौसला अफजाई की और आने वाले प्रोग्रामों के लिए मशवराजात लिए गए कि हम किन तरीक़ों से नौजवानों की रहनुमाई कर सकते हैं ताकि हमारे नौजवान बेटे और बेटियां तालीमी, ईमानी, माशी और ख़ानदानी तौर पर तरक्की कर सकें। मैट्रिक करने के बाद बच्चों को मुख्तलिफ शोबों में जाने के लिए तरबियती प्रोग्राम किए जाएँ ताकि नौजवान सीखें और माशरे के हर शोबे में हिस्सा ले सकें। बिशप साहब ने कहा कि हम सब मिलकर खूब मेहनत करें ताकि हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल रोशन हो। हिरोशिमा और नागासाकी के एटमी हमलों की 75वीं एनिवर्सरी के मौका पर पोप फ्रांसिस ने सारी दुनिया से अपील की है कि दुनिया को एटमी हथियारों से आज़ाद करें। इस दुनिया को सबसे बड़ा खतरा एटमी हथियारों से है, जिसकी वजह से लोग खौफ के साए तले जिंदगी बसर कर रहे हैं। पोप फ्रांसिस ने कहा कि जो वसाइल एटमी हथियारों पर लगाए जा रहे हैं उनको इंसानी भलाई और तरक्की के लिए और माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्तेमाल किया जाए। एटमी हथियारों का इस्तेमाल और उनका रखना गैर इखलाकी है। पिछले साल जब पोप फ्रांसिस ने हिरोशिमा का दौरा किया तो उन्होंने कहा कि एटमी हथियारों से हलाक होने वालों की चीखों पुकार आज भी हमें सुनाई देती है। वो मुख्तलिफ जगहों से आए थे और उनके नाम मुख्तलिफ थे और वो मुख्तलिफ ज़ुबानें बोलने वाले थे, लेकिन वो सब एटमी धमाकों की नज़र हो गए। इसके नकूश सिर्फ इस मुल्क की तारीख पर ही नहीं बल्कि इंसानियत के चेहरे पर भी मौजूद हैं। उसी दिन पापा आज़म ने नागासाकी का भी दौरा किया और कहा कि एटमी हथियारों के बगैर भी दुनिया मुमकिन है। उन्होंने दुनिया के तमाम सियासतदानों को दावत दी कि वो एटमी हथियारों की दौड़ को ख़त्म करें और अपने ममालिक को एटमी हथियारों से पाक करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। सना जॉर्ज को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। RVA उर्दू न्यूज़ सर्विस, सच्चाई और अमन की आवाज़।
امن اور سچائی کے اس آواز کے ساتھ ہم آواز ہونے کے لیے اپنی ڈائسس، پیرش، تعلیمی اور فلاحی اداروں کی سرگرمیوں کی خبریں RVA کے اس ای میل اور واٹس ایپ نمبر پر بھیجیں۔ ای میل ہے rvaurdunews@gmail.com۔ واٹس ایپ نمبر ہے 009333459155۔ दोस्ती का पैगंबर रेडियो वेरितास एशिया।